Bismillahirrahmanirrahim. This is me Noman Shir, your English instructor once again with all of you people. My dear student, hope you all are well. As you know that yesterday we completed our rule number 1. So today I'm going to teach you about rule number 2. This rule number 2 is very cardinal for competitive exams. So you need to watch this video very carefully, okay? First of all, okay, yesterday I told you, okay, first we need to see the characteristic, means to say on the basis of parts of speech कि ये for example मैंने कल आप लोगों को बताया था कि everybody, nobody, पहले मैंने ये बताया था कि ये as a pronoun काम करती है, as a noun या as adjective. तो आज ही हम लोग इसी तरह करेंगे कि every, first we need to the characteristics of every and each, then after we gonna talk about these examples, okay? So first, every, it works as a adjective in a sentence. It works only as adjective. Let me tell you something. There are a lot of students ना उनकी misconception होती है क्योंकि कहती है कि every as a pronoun भी हम लोग use करते हैं. ये as a pronoun, it will never work as a pronoun in a sentence. ये every एक एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन कभी भी प्रोनाउन की तरह काम नहीं करेगा. ये सिर्फ एडजेक्टिव है और सेंटेंस में एडजेक्टिव ही काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह का काम करेगा. क्यों? रीजन फिर सेंटेंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रीजन क्या है. पहले फिर मैं बता दूं ना, दूसरा बात ये, और ये मजे की बात ये, एवरी इज अ सिंगुलर, इट्स नॉट अ प्लूरल. As you know, the subject and verb agreement, as I told you yesterday कि subject और verb agreement यही है कि अगर subject singular था तो verb को भी singular होना चाहिए, अगर subject plural है तो verb को भी plural होना चाहिए. तो इधर देखो every, I told you every is a singular, तो singular के साथ हम लोग verb कौन सा यूज करेंगे? Verb हम लोग भी singular यूज करेंगे. I hope that you got it, okay? Another point, जो एवरी है, इसके जो रेंज यानी स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल पर्सन हो गए, हम लोग उस वक्त यूज करते हैं जब मोर देन 2, देन आफ्टर वी कैन यूज एवरी. और यू कैन आल्सो से जब 2 हो गए उनके लिए, उनके साथ भी हम लोग एवरी यूज कर सकते हैं. अगर 2 से ज्यादा हो गए तो भी हम लोग एवरी यूज करेंगे, अगर 2 से कम थे तो वी विल नॉट यूज एवरी, ओके? एंड देन let me tell you the examples. I told you that every, it will never work as pronoun. What is the reason? Let me tell you the reason, okay? For example, in a sentence, if I say that everyone or student, everyone student was present. Everyone student was present. ये everyone क्या है? It's a pronoun. Yesterday I told you that everyone या everybody, nothing, nobody, ये सारे pronoun है. They will work as a pronoun in a sentence. तो इस sentence में देखो everyone, it's a pronoun, और everyone के बाद फौरन क्या आ रहा है? Student. Student ये एक noun है. तो let me tell you something, in a similar sentence, noun and pronoun will never used in a sentence together. Noun और pronoun हम लोग कभी, ये इम्कान बिल्कुल, it's impossible कि noun और pronoun एक sentence में आ जाए. तो let me define the noun, okay? Noun क्या है? Noun is the name of person, place or thing. Noun हो गया. तो pronoun क्या है? Pronoun, we use pronoun instead of noun. कि प्रोनाउन को हम नाउन की जगह में यूज करते हैं. अगर ना प्रोनाउन को नाउन की जगह में यूज करते हैं तो इधर देखो एवरीवन स्टूडेंट, ये एक प्रोनाउन हो गया, ये एक नाउन हो गया, तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. तो करेक्ट कौन सा होगा? जब हम लोग क्या, एवरी वन प्रोनाउन की जगह में एडजेक्टिव यूज करें. एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए? एक नाउन आना चाहिए. तो ये क्या, एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट. वाज मैंने इसलिए लगाया था, एज आई टोल्ड यू दैट सिंगुलर है, एवरी सिंगुलर है. अगर सिंगुलर, एवरी सिंगुलर हो गया तो वर्ब को क्या, इट शुड बी सिंगुलर. तो देखो एवरी स्टूडेंट वाज, I used singular form of verb in this sentence,
because I told you that every is a singular, therefore I used. Okay, so I hope that you have got the concept of every. So now I'm gonna talk about the each. Okay, that each का usages क्या है, और बहुत से जो competitive exams होते हैं ना, ये दोनों question और आते हैं neither, either, any, no, anyone और none, ये भी इंशाल्लाह जो कल या परसों गया ये 3 वीडियो में मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, part 1, part 2, part 3. Inshallah we will cover the rule number 2 into 3 parts. Okay, each. First of all, let me tell you the characteristics of each on the basis of parts of speech. Each, okay, it works. ये थोड़ा कंफ्यूज करता है बहुत से स्टूडेंट को. It works as adjective in a sentence as well as a pronoun in a sentence. कि each ना एडजेक्टिव भी काम करता है, एज अ प्रोनाउन भी काम करता है सेंटेंस में. फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को आर यू सपोज टू फाइंड each works as a pronoun or as an adjective. After this, okay, I'm going to tell you. Then other point, okay, जो each है ये it's same to every. ये क्या, ये भी singular है, it's a singular as well. Okay, as you know that the subject and verb agreement, इस दर भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर सिंगुलर है तो इसके साथ हमें क्या यूज करना चाहिए, वर्ब, वो भी that should be singular, then our sentence will be accurate. Okay, फिर it's used with a person more than two or only two, आप भी कह सकते हो. ये भी सेम है ना, इधर भी मैंने कहा मोर देन टू. ये एवरी इज यूज मोर देन टू. जब 2% दो से ज्यादा हो गए तो हम लोग एवरी यूज करेंगे, लेकिन ईच में भी अगर 2 से ज्यादा हो गए या 2 हो गए, इधर भी हम लोग क्या ईच ही यूज करेंगे. ओके, लेट मी टेल यू इन अ सेंटेंस के एज एडजेक्टिव कब ये काम करेगा, एज अ प्रोनाउन कब ये काम करेगा. तो फॉर एग्जांपल, ईच student was present. Each student was present. Now look at this sentence. मैंने was इसलिए यूज की क्योंकि each ये एक क्या एज अ एडजेक्टिव है, एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है. अगर किसी द टेंडेंसी ऑफ अ सब्जेक्ट इज टू बी अ प्रोनाउन और नाउन, सब्जेक्ट हो जाए उसका मतलब ये कि ये प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है. लेकिन इस सेंटेंस में ये एक प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर रहा है. अगर ये वर्ब सिंगुलर है, ये स्टूडेंट इज अ सिंगुलर, इसलिए हम लोगों ने वाज भी सिंगुलर यूज किए. क्यों, वजह क्या है, इस सेंटेंस में ईच एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि आफ्टर द एडजेक्टिव देयर शुड बी अ नाउन. अगर ये प्रोनाउन की तरह काम करता ईच स्टूडेंट, तो ये मैंने कहा था कि आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन टुगेदर हम लोग कभी यूज नहीं करते सेंटेंस में. अगर ईच के फौरन बाद अगर नाउन आ गया तो वो ईच क्या एज एडजेक्टिव काम करेगा. अगर नाउन नहीं आ गया तो उस वक्त हम लोग क्या ईच को एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे. लेकिन इस सेंटेंस में ईच एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है कि ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट. तो अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या है. अगर ये स्टूडेंट सिंगुलर है तो वाज क्या, ये भी सिंगुलर होगा. तुम्हें ईच एज एडजेक्टिव काम कर रहा है. तो एज अ प्रोनाउन कब काम करेगा, लेट मी टेल यू इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, each of the students was present. I observed in my life. Okay, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, जब कोई स्पीकिंग ना
इंग्लिश में बात करता है या कोई ऐसे लिखता है या कोई सेंटेंस बनाता है, तो उस वक्त ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट ये नहीं करते, इंस्टेड ऑफ दिस वो लिखते कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। दैट सेंटेंस इज इनकरेक्ट। लेट मी टेल यू व्हाई। माय डियर स्टूडेंट ना, देखो इस सेंटेंस में थोड़ा गौर करो कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, वाज मैंने इसलिए यूज की। फॉर एग्जांपल ना, हम लोगों का सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन, हम लोगों को मेन सब्जेक्ट वही होता है जो प्रेपोजिशन से पहले आता है। मेन सब्जेक्ट वही होता है जो प्रेपोजिशन से पहले आए, वो हम लोगों का मेन सब्जेक्ट हो गया। अगर हम लोगों का मेन सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से पहले सिंगुलर है तो द वर्ब शुड बी सिंगुलर। इस सेंटेंस में देखो ना, ये ऑफ, इन दिस सेंटेंस ऑफ इज अ preposition, इट्स अ preposition। इससे पहले मैंने कहा ईच एज अ प्रोनाउन काम करता है। अगर ऑफ से पहले, preposition से पहले अगर हम लोगों का मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज इट शुड बी सिंगुलर। तो preposition से पहले ईच आ रहा है तो ईच एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है, मीन्स टू से सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वाज, ये क्या, इसको भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में क्या, ईच एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा डिफरेंस एडजेक्टिव और प्रोनाउन। एडजेक्टिव तब आता है कि जब सेंटेंस यानी ईच के फौरन बाद नाउन आ जाए, उस वक्त तो ईच, ये ईच एज एडजेक्टिव काम करेगा। फौरन बाद ये ईच हो गया, इसके फौरन बाद क्या, एक नाउन होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, तो उस वक्त ये एज एडजेक्टिव काम करेगा। अगर ईच एक प्रेपोजिशन, एक सेंटेंस के जो प्रेपोजिशन है उससे पहले अगर एक सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है, तो उस वक्त तो एज अ प्रोनाउन काम करेगा। अगर उस वक्त तो ईच इज सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव गॉट एवरीथिंग। In conclusion, I'm just gonna tell you, don't forget to subscribe my channel. You should subscribe my channel. See you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.